While hectic meetings are underway even as we speak, Vasundhara Raje is meeting with BJP President JP Nadda in the national capital, and at hand is the effort to try and finalize the names for chief ministers of the three states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. There were hectic parleys and a lot of buzz about whether Vasundhara Raje and Shivraj Singh Chauhan are flexing muscle and trying to show down the central leadership. So who really is going to be in the running? Today evening, you had a series of meetings taking place in the national capital. Baba Balaknath went and met Amit Shah. You had Gajendra Shekhawat also holding a meeting with the Home Minister. Vasundhara Raje waited for an appointment for all of the evening. Finally, that meeting has taken place, but only between her and JP Nadda. So is this a rebellion by the old guard of the BJP? And is the High Command slowly easing out their old war horses to end an era known as the Atal era, of the faces that Atal Bihari Vajpayee groomed and brought into politics as a part of his cabinet? Let's go across to Sameer Chaugankar, senior journalist. Also with us is senior journalist Pankaj Sharma. Let's analyze what's happening. Sameer जी, सबसे पहले ये बताइए कि वसुंधरा जी ने रिजॉर्ट में 5 विधायकों को रखा, वो बात डिनाई की जा रही है, पर अफवाहों का बाजार गर्म है कि 30 एमएलएज वसुंधरा जी के साथ है एंड शी इज नॉट बैकिंग डाउन. अब क्या होगा? देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि जो ललित मीणा को जो कल रिजोर्ट में रखा था और 5 विधायकों की जो बात चर्चा हुई है, मुझे लग रहा है शाम को पार्टी का स्पष्टीकरण आ गया है कि ऐसा कोई बात नहीं हुई थी. 5 विधायक जरूर गए थे, लेकिन यह बात भी सही है कि इसके पीछे दुष्यंत का नाम आ रहा है, वसुंधरा के बेटे का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है. मुझे लग रहा है अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी वसुंधरा राजे के खेमे की तरफ से हुई है तो यह वसुंधरा के लिए बहुत बड़ा डैमेज का कारण बन सकती है. भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते. एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी है. इस तरह की एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती. तो मुझे लगता है अगर पार्टी इस बात को पता करने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअली ये एपिसोड जो कल हुआ था इसके पीछे कौन था, अगर ये बात प्रूव होती है कि इसके पीछे दुष्यंत का इन्वॉल्वमेंट था या वसुंधरा की इसके सहमति थी, तो ये आप निश्चित रूप मान के चलिए कि आज जब वसुंधरा राजे नड्डा के साथ बैठक कर रही है, उसके बाद अमित शाह से जब मिलेगी, जरूर इस समय में नाराजगी जाहिर की जाएगी और वसुंधरा के लिए यह बहुत आसान नहीं होगा मुख्यमंत्री बनने के लिए. और इसके बाद जो विधायक वसुंधरा के साथ जुड़े हुए थे, जो 30 से 35 वसुंधरा से मिलने गए थे, मुझे लग रहा है वो विधायक भी वसुंधरा से दूरी बना लेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर कैडर में अनुशासन बहुत जरूरी है. और मोदी शाह की पार्टी और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेज पर है, वहां इस तरीके के धमकी दबाव बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. Mr. Sharma, what do you make of the moves of Shivraj Singh Chauhan? He was in Chhindwara yesterday. Now he is in Shivpuri. Now he is going to go off to Raghogad. All of these places, of course, which are supposed to be strong areas of the Congress. Is Shivraj Singh Chauhan sending the message कि मैं तो अपने मिशन 29 पे निकल गया हूं 2024? You guys keep doing whatever you want to. It is quite clear. See, I would say that it is a very positive sign that BJP is finding difficult in deciding the names of the chief ministers in 3 states. It means internal democracy has begun taking a concrete shape within the party. This means regional satraps are becoming more and more assertive. If a party which is so tightly controlled by and monitored by Narendra Bhai Modi and Amit Bhai Shah is facing difficulty in taking a decision for Madhya Pradesh, Rajasthan and even for Chhattisgarh, I would like to congratulate the well-meaning leaders of the BJP for the birth of a definitive process of the suspension of monopolism enjoyed by the DO till today. Okay, Sameer ji, you want to respond to this? Internal democracy, Pankaj ji is congratulating the BJP. Yes. Sameer Chaugankar. देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिस्टम होता है वर्किंग का. आप देखिए सारे विधायक दल की बैठक होगी, अभी केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे. ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री चुनने के अंदर कोई बहुत दिक्कतें आ रही है. ऑलरेडी 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पास वहां नेता है. छत्तीसगढ़ में रमन सिंह है, राजस्थान में वसुंधरा राजे है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब नए दिशा की ओर बढ़ रही है, नया नेतृत्व प्रदेश के अंदर चाहती है और इसीलिए पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है. तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है. प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को यह बात पता है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है.
पार्टी के अंदर बस यह है कि कब उस नाम का अनाउंसमेंट करना है, इसकी पंकज शर्मा चर्चा है। responding. पार्टी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉलेज में है, उन्होंने तय कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कल केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजेगी तीनों राज्यों के अंदर, परसों विधायक दल की बैठक होगी और संडे या मंडे को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा। Pankaj Sharma, everyone wants a change of guard and it's apparently going to happen in Rajasthan as well. Ashok Gehlot seems to be now out in the woods. The rumors are that Sachin Pilot is going to be made the PCC chief. Same with Madhya Pradesh. There were a lot of reports now being denied by the Congress that Kamal Nath has been asked to step down. So everyone is doing a change of guard. The change of guards is good. Who is against that? But you know, here what is happening? I can assure you that no one with freewheeling mind, independent decision-making capability, and self-supporting political base would be allowed to assume the seat of the chief ministers in all these three states. You know, Bhupendra Bhai Patel and Pushkar Singh Dhami types will be imposed. So change of guards is fine, but who would be the next CMs? That is more important. Rubber stamps. Rubber stamps. समीर जी, रबर स्टैम्प्स को ढूंढा जा रहा है। मुझे ये मैं पंकज जी से ये कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। दे विल सिलेक्ट देयर चीफ मिनिस्टर। क्या कमलनाथ ने हार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया है? क्या अशोक गहलोत ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि मैं विपक्ष का नेता नहीं बनूंगा? क्या भूपेश बघेल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि मैं विपक्ष का नेता नहीं बनूंगा? मुझे लग रहा है कांग्रेस के अंदर इतनी बुरी हार होने के बाद भी तीनों नेता अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज भी कमलनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए, उन्होंने तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर पहले ही अपने आप को देखना चाहिए कि भाई आप हार चुके तो तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लो, नया अध्यक्ष लाओ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी तरह की समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी शुरू कर चुकी है और मुख्यमंत्री उसी आधार पर तय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तीनों कर रहे हैं और आरएसएस का संगठन ये चर्चा कर रहा है कि कौन नेता प्रदेश को अच्छे से कैरी कर सकता है। जो बहुमत जनता का मिला हुआ है, मैंडेट जो मिला है, इसे 2024 में सभी के सभी सीटों में कन्वर्ट कर सकता है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतना है, छत्तीसगढ़ की 11 और राजस्थान की 25 सीटें। पर ये बात सच नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान फाइट बैक कर रहे हैं, वसुंधरा फाइट बैक कर रही है और सेंट्रल लीडरशिप खुश नहीं है। ये बात भी तो सच है। नहीं, आप देखिए ना, नहीं, अगर ऐसा होता पद्मजा तो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया जाता या शिवराज सिंह चौहान को रिएक्शन करते या रमन सिंह दिल्ली में आते, सिर्फ वसुंधरा को दिल्ली बुलाया गया है। मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जरूर प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, जैसे कि कल रमन सिंह को मैं सुन रही थी, रमन सिंह कह रहे हैं कि मैंने सारे ब्यूरोक्रेट्स को बोला है कि कोई भी फाइल्स, पुरानी फाइल्स पे सिग्नेचर मत कीजिए। अरे आप कैसे ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज दे रहे हैं? वो तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। बिल्कुल नहीं, देखिए, रमन सिंह बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का बयान जरूर आया है। हो सकता है कि इनके मन में इच्छा हो कि हम फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के अंदर सत्ता की लड़ाई हुई, जिस तरह छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की सत्ता की लड़ाई हुई, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कुर्ता फांडी की राजनीति सार्वजनिक रूप से हुई, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कभी नहीं होता। कोई भी जो भी विधायक बनता है उसे इच्छा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। जो पहले मुख्यमंत्री बन चुका है, मैसेजेस देते हैं, कभी कुर्ता फाड़ लड़ाई नहीं होती। पंकज शर्मा, here's the thing, the Congress is taking pot shots at the BJP, but for example, even in the Congress, nobody really likes strong leaders. Ashok Gehlot, when he rebelled against the central leadership, he was put in his place by the High Command. Same is being said for Kamal Nath also, that he is being told, "Bhai, you take responsibility and you make way for the others now." So nobody likes strong leaders, including in the Congress. उनको किनारे लगाया जा रहा है. In fact, the Prime Minister said कि ये अशोक गहलोत का आखिरी इलेक्शन है, अब गांधी उनको बचने नहीं देंगे. No. Last election for Ashok Gehlot or Kamal Nath is a different thing. See, the way BJP functions and the way Congress functions, it is entirely different. We have seen BJP's functioning in last 10 years. Absolutely. With such an autocratic attitude. That is why I am telling you that it should be a welcome sign
that Okay, now, at everyone least is now- happy. You see it as a welcome sign. I am out of time completely, but we haven't heard the last word on this story because right now only one meeting has taken place. It could be a very long night for the CM probables and the CM hopefuls, at least in 3 states. Luckily for Telangana, they got their chief minister today. Best of luck and congratulations to Revant Reddy and the Congress for that. Thanks very much, both gentlemen, for joining me. Thanks for watching.